Hello and a very good afternoon to all of you. So as you know, today we are going to start with our new segment, that is the physical anthropology. But first of all, we would like to see the whole syllabus and ये जो segment है ये कौन से पेपर का part है और किस तरीके से we are going to continue. So पहले वो एक recap ले लेते हैं and then we are going to start with this segment, the physical anthropology. हाँ जी, जल्दी से आ जाइए. हाँ जी, गुड आफ्टरनून पार्थ, गुड आफ्टरनून वरुण, गुड आफ्टरनून जूही. बाकी सब भी जल्दी से आ जाइए. Okay, first of all we need to know this thing that this syllabus it is constituting the 5 factors, the 5 components जो कि basis है of the anthropology, जिसमें socio cultural, tribal, Indian archaeology and physical anthropology, and हम इसको इसी circle के through जो है complete करते हैं. So that's how we are going to conclude. First we are going to cover this, the physical part, and it is comprising of 24% of the total syllabus, and let me just tell you, it is the part of the paper 1. After that the archaeology, then the socio-cultural, then the Indian, and then the tribal. And this is the percentage: 24% for the physical anthropology, 33% for the socio-culture. Archaeology is 5% and it's part of the paper 2. So you can see these 3, they are the part of the paper 2, and these 2, they are the part of the paper 1. So that's how we are going to cover this. So we are going to start with the physical anthropology, but first of all I would like to show you the whole syllabus, units कितनी है, किस तरीके से, so that कि जिस तरीके से आपका syllabus cover हो, आपको per day basis पर updates मिलती रहे कि कौन सा unit किस तरीके से हो चुका है. So we are going to see. Okay, as you can see on the screen, this is the anthropology paper 1. Paper 1 का syllabus है and the paper 1 it is including the 12 units, and जो paper 2 है that paper 2 is including the 9 units. So अब एक बार आप यहाँ देख लीजिए. In the paper 1, the first 3 units they are related to the socio-cultural. Then from the unit 1.4 to 1.7 it is related to the physical anthropology. Then from the 2 to the 8 it is socio-cultural. Again from the 9 to the 12 it is the physical anthropology. Then in the paper 2, the first 3 units they are related to the archaeology. Then from the 2 till the 5.3 it is related to the Indian anthropology, and from the 6 to the 9 it is the tribal India. And इसी तरीके से per day unit wise ही इसी series में आपका जो है whole syllabus cover करवाया जाता है. So as we are going to start with the physical anthropology, so it is starting from the unit 1.4 to 1.7 and then from the 9 to the 12. Okay, so let me just tell you one thing that कि यहाँ हम हर एक unit को cover करेंगे, but let me just tell you, first we are going to cover this unit. So we are going to start with the unit 1.7, the biological basis of the life. Why? Because this unit is going to be basis for other units. So first we will cover the unit 1.7. After covering the unit 1.7, we will cover from here, from 9 to 12. After completing this 9 to 12, we will come back to the unit 1.4, 1.5 and 1.6. तो इस तरीके से हम करेंगे. One most important thing is that कि आपका जो ये physical anthropology वाला part है, this part is having overlapping with your GS paper. अभी आपका GS का प्री और मेंस दोनों के साथ ही ओवरलैपिंग है. प्री के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो यूनिट 1.7 द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ,
ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड द क्रोमोसोम, द एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन, द एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड द डेमोग्राफिक थ्योरीज. दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि आपके प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल अदर दे आर फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, जो आपका जीएस पेपर 3 जिसमें कि साइंस एंड टेक वाला पार्ट आता है उससे रिलेटेड है. So some of the person they are having the myth that anthropology it is the science, it is the human anatomy. So यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा that कि ये जो आपका पार्ट है, this part is just constituting the 24%, and not only this part is having the overlapping with the paper GS3. साइंस का जो आपका पार्ट है उसके साथ इसका ओवरलैपिंग है. सो चाहे तो आप इसको यहाँ पढ़िए, चाहे तो आप अपने जीएस में पढ़िए. साइंस वो वाला जो 24% पोर्शन है उससे आप बच तो नहीं सकते हो. सो सम ऑफ द पर्सन हु यूज्ड टू से दैट अरे साइंस नहीं होगा दिस एंड दैट, सो उससे आप बच नहीं सकते हो अगर आप इस यूपीएससी प्रिपरेशन में हो. वाई? बिकॉज आपके जनरल साइंस का वो एक पार्ट है, आपकी जनरल स्टडीज़ का वो एक पार्ट है. ओके, सो इसी नोट के साथ we are going to start with the unit 1.7, which is basically the biological basis of life. So one more thing that handwritten notes रहेंगे, आपके printed notes रहेंगे. आज अपलोड नहीं हुआ है, कल से आपका यूनिट वाइज अपलोड होगा, बिकॉज आज का क्लास इज सम सॉर्ट ऑफ डेमो, एंड इन द डेमो आई कुडंट प्रोवाइड यू दी नोट्स. तो कल से प्रॉपर हमारा जो बैच स्टार्ट होगा तो वहाँ से हमारा नोट्स जो है वो आपके ऐप में ही अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, इसी के साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप बनेगा. इन दैट ग्रुप वी आर गोइंग टू हैव द आंसर राइटिंग प्रोग्राम, एंड इन द क्लासरूम इटसेल्फ वी आर गोइंग टू हैव दैट आंसर राइटिंग. और हर एक सेक्शन खत्म होने के बाद आपका सेक्शनल टेस्ट रहेगा. ओके, इसी के साथ साथ आपको प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कुछ पीपीटीज होंगी, एंड वी वुड सी सम सॉर्ट ऑफ वीडियोज एज वेल, जिसके थ्रू वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस, एंड बहुत ईजीली जो है यू विल एंजॉय द प्रोसेस, यू विल एंजॉय द सिलेबस, यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट, and you will get to know that the subject is very very interesting because you get to know some of the things जो कि आपको पहले नहीं पता थी. So जो पता है वही पढ़ रहे हो, उसमें क्या इंटरेस्ट. This is something जो आपको नहीं पता है, and then you get to know all these things. So that is something which is very interesting. So on this note we are going to start with the unit 1.7, the biological basis of life. तो क्लास के साथ साथ you have to write. I am going to dictate. So I am going to dictate. आपको वो लिखना होगा. कुछ भी समझ ना आए so आप जो है टेलीग्राम के थ्रू भी एंड आप क्लास में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन किसी भी मोड में. ओके, हाँ जी, किसी की कोई क्वेरीज हो, कोई कुछ जानना चाहता हो, किसी के कोई इनसिक्योरिटीज, डाउट्स कुछ भी हो तो यू कैन शेयर. हाँ जी, अरे आज तो सौरभ ने गुड आफ्टरनून बोला है, वाह. अदरवाइज कोवर्ट रहकर क्लास हो जाती है. हाँ जी, करूँ स्टार्ट में? अरे नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. ओके, आंसर राइटिंग हर दिन नहीं होगी, आंसर राइटिंग हर यूनिट के कंप्लीट होने के बाद होगी. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द यूनिट 1.7. सो 1.7 यूनिट कंप्लीट होगी, क्वाइट पॉसिबल 1 डे में हो सकती है या 2 डे में, मैक्स 2 डेज में ये हो जाएगी. तो आफ्टर 2 डेज हम इसकी आंसर राइटिंग करेंगे. तो हर एक यूनिट का आंसर राइटिंग होगा जितने ही टाइम पीरियड में वो कंप्लीट होगी. फाइन, ओके. सो इफ आई एम सेइंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, then it means that कि there need to be one component or there need to be something जो कि life generate करता है. Okay, so there is one person and it is the time period of the 1665. Robert Hooke, when he first noticed with the help of the microscopy that there is something which is including some components and that components they are like fitted in terms of a room. तो उनको ये लगा दैट रॉबर्ट हुक को दैट कि एक पार्ट है, बहुत स्मॉल पार्ट, माइक्रोस्कोपी की हेल्प से उन्होंने देखा, क्योंकि सीधी सी बात है यू कैन नॉट सी, लाइक आप अपनी नॉर्मल आइज से यू कांट सी दैट.
सो माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से व्हेन ही सो दैट थिंग, तो उन्होंने पाया दैट देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स, अरेंजमेंट है, एक फिटेड फॉर्मेट में वो सब चीज़ें बंद हैं। एंड देन ही सेड दैट कि ये जो चीज़ें जब बंद है तो ये एक रूम की तरह है। एंड ही सेड दैट आफ्टरवर्ड ये रूम जो है इट इज समथिंग विच इज सेल। सो the answer for this question, the biological basis of the life is nothing but the cell. So cell basically है क्या? Cell it is the smallest functional unit of an organism. तो cell के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि एक smallest functional unit अगर हम बात करें तो that is basically called as the cell. अब ये जो cell है, ये cell आपका एक structure को show करता है। I mean when I am saying cell, it means I am talking about a room. अब आप बोलोगे दैट रूम तो खाली भी हो सकता है और रूम तो भरा हुआ भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, बट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, जब हम रूम की बात कर रहे हैं इट मीन्स दैट हमारे माइंड में रूम से रिलेटेड कंपोनेंट्स भी आते हैं, रूम से रिलेटेड थिंग्स भी आती है। इन द सेम वे सेल इट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and this functional unit is basically called as the cell. अब जब सेल जो है वो सब जॉइंट होते हैं, आई मीन फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना इफ़ यू हैव दैट मच डेडिकेशन एंड इफ़ यू रियली वांट टू शो, सो अगर आप अपना एक पार्टिकल जो है ऑफ योर स्किन ऑफ योर बॉडी, इफ़ यू विल गेट दैट पार्टिकल एंड उसको आप माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से देखोगे, देखो आफ्टरवर्ड जो भी हो वो आप जाने, बट इफ़ यू विल सी आप with the help of the microscopic, उसके बाद आप देखोगे then you will find so many other components, और उन्हीं components को organelles जो हैं हम बोलते हैं, वही component उस cell को working बनाते हैं। So cell it is a kind of structure. Okay, so proper round shape नहीं होती है, it is in the form of this, या किसी भी format में ये हो सकता है, बट मैं इस फॉर्मेट में आपको समझा रही हूँ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेल। ओके, सो सेल ये एक अपने आप में एक आउटलुक है, एक स्ट्रक्चर है विच इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर प्रोसेस और द वर्किंग। सो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो कि सेल है, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है, हम इसको माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से इसको देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से और जो भी कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो सेल है ये एक ऐसा पाउच है जिसने अपने अंदर कुछ सामान को इंटैक्ट करके रखा हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो इसमें होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। यूजुअली बोला जाता है दैट कि जब आप सेल की बात कर रहे हैं तो सेल मीन्स द 3 कंपोनेंट्स। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला कंपोनेंट निकलता है सेल में सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स द आउटर लेयर। देन सेकेंड पार्ट जो आता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड एज दैट पार्ट द किंग ऑफ द सेल, जिसके लिए बाकी का काम किया जाता है। तो इसे हम बोल सकते हैं दैट लाइक पावर पॉइंट और सोल बोल सकते हैं जिसको सेल की, बिकॉज उसी के लिए सारा काम किया जाता है। तो वी कैन से द पावर पॉइंट। And the another one is basically called as the cytoplasm. Cytoplasm it is the liquid which is there in the cell, and ये जो liquid part होता है of the cell, this is like providing एक the kind of movement करने के लिए एक liquid provide कर रहा है, so that कि जो cell के अंदर का सामान है वो intact रहे, उसको किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो। एंड यूजुअली आप मुझे बता दीजिए, नॉर्मली सपोज करिए आपको कहीं पर कोई कुछ जो है डिलीवर करना है, तो वो जो प्रोडक्ट है अगर वो डेलिकेट है तो हम क्या करते हैं, हम उसको इस तरीके से पैक करते हैं सो दैट कि
उस प्रोडक्ट को कुछ जो है अफेक्ट ना हो। इन द सेम वे साइटोप्लाज्म एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर भरा हुआ होता है, जो हेल्प करता है कि बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, वो किसी तरीके से हैम्पर ना हो। ओके, सो ये 3 मेन पार्ट होते हैं सेल के, बट देयर आर सम अदर ऑर्गेनेल्स एज वेल। अब ये क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक सेल की वर्किंग को शो करते हैं, बिकॉज आपने पहले ही समझ लिया है दैट सेल क्या है, ये एक फंक्शनल यूनिट है। ओके, तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं। सेल में आपने देख लिया है दैट सेल के यहाँ जो आउटर अपीयरेंस है, उस आउटर अपीयरेंस को हमने क्या बोला है, आउटर अपीयरेंस को हमने बोला है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये एक आउटर लेयर है जो कि आपके अंदर के सामान को प्रोटेक्ट करती है, जो अंदर के कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। अब आप एक बात समझिएगा, फॉर एग्जांपल आप जो है कुछ ऐसा बाहर से सपोज करिए कोई भी आप जो है प्रोडक्ट लेने के लिए गए हैं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है कैरी कर रहे हो तो फॉर दैट यू नीड अ कैरी बैग, आपको कैरी बैग की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आपने सामान अंदर है और बाहर से आपने सामान को पकड़ा हुआ है, सो दैट इज़ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द कैरी बैग। और वो कैरी बैग क्या करता है, कितना भी सामान आप उसमें डालो तो वो उसको इंटैक्ट रखता है और आपको एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सो दिस मेम्ब्रेन इज बेसिकली कॉल्ड एज दैट प्रोटेक्शन लेयर। बट फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि लिक्विड है, या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हैवी है और जो कि बड़ा है इन द साइज, सो उसके लिए एक सिंगल जो प्रोटेक्टिव लेयर है, सो फॉर एग्जाम्पल एनवलप है, वो काम नहीं कर सकता। फॉर दैट यू रिक्वायर अदर प्रॉपर अदर ऑर्गन एज वेल। सो दैट्स वाई यहाँ पर इन सम ऑफ द सेल्स, सो रिमेंबर माई वर्ड्स, इन सम ऑफ द सेल्स कुछ ऐसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उनके हैवी साइज को और जो उनकी लिक्विडिटी को इंटैक्ट करके रखती है। सो दैट एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज the cell wall. As you can see this structure, and this structure is basically called as the cell wall. हाँ जी, सो अंदर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक आई नीड टू ड्रॉ विद दिस कलर सो दैट यू कैन कंपेयर। So this one is the cell membrane. The red part, as you can see, it is the nucleus. And one more thing, the most important, that आपका जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को भी प्रोटेक्ट करती हुई एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। As you can see this blue one, this is basically called as the nucleomembrane. हाँ जी, इतना समझ आ गया अभी आपको। सो अभी हमने क्या सीखा, अभी जस्ट हमने सीखा है दैट जो आपका सेल होता है, दैट सेल इज इंक्लूडिंग द 3 मेन पार्ट, फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड जो इसके अंदर भरा हुआ है। आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है जो इसके अंदर है, दैट इज द सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड, और ये लिक्विड क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। ओके, सो एक बारी आप इसको बना लेना साथ में, उसी के साथ साथ आई विल शो यू एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं शो करूँगी, और आज आपका जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ग्रुप बन जाएगा, तो ग्रुप में मैं आपके जो है वो शेयर भी कर दूँगी, सो दैट कि आपके पास एक आउटर अपीयरेंस के लिए पिक्चर रहे जिसको कि आप रेप्लिकेट कर पाएँ। फाइन, हाँ जी, इतना समझ में आ गया है। सो फार हमने जाना द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। ओके, अब हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा ये सेल है, इस सेल के अंदर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, या सेल में किस किस तरीके के पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट कि आपके
सेल में जो भी अदर फंक्शन काम करते हैं, सो वो काम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को एनर्जी देने के लिए करते हैं, बिकॉज अगर न्यूक्लियस लिविंग रहेगा तभी वो सेल भी लिविंग होगा, अदरवाइज दैट सेल विल टर्न इनटू द डेड सेल, वो जो सेल है वो डेड सेल में टर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एंड द फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज, लाइक इस पोर्शन में होता है, सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, and this portion is basically called as the mitochondrion. So this is basically called as what? The mitochondrion. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है, ये इसका काम क्या होता है और ये काम क्या करता है? So ये जो माइटोकॉन्ड्रियन होता है, this is basically called as the power house of the cell. इसे पावर हाउस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल सी बात का मुझे आप एग्जाम्पल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप विंटर के टाइम में हो और विंटर के टाइम में आप या तो विंटर में, या आप ऐसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप एक हिली एरिया में हो। सो हिली एरिया में आपको पता है दैट कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है हिली एरिया में, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है उस एटमॉस्फेयर में वो कम होता है। अब आप हिली एरिया में वहाँ पर हो और क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिली, देन आप हाफना स्टार्ट कर देते हो, और उस हाफते आपको फील होता है दैट आपकी एनर्जी लो हो रही है, यू वांट टू सिट, या यू वांट टू ड्रिंक वाटर, या यू वांट टू ब्रीद मोर एंड मोर। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन इट इज, देखिए फूड और वाटर वो तो है ही, बट ऑक्सीजन, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म एयर हेयर, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म एयर, बट आई एम सेइंग ऑक्सीजन इट इज कंसीडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एनर्जी। वाई? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सेल है, और सीधी सी बात है, अगर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, देन दैट पर्सन वो पर्सन जो है वो डेड हो जाता है। इन द सेम वे, अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, देन सेल भी डेड हो जाएगा। बट जो सेल होते हैं वो ऑक्सीजन को उसी प्रॉपर फॉर्मेट में यूज़ नहीं करते हैं। सेल ऑक्सीजन के थ्रू जो है एनर्जी डेवलप करते हैं, एनर्जी मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड दैट्स वाई सेल को फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, क्योंकि सेल अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद से करते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमारे बॉडी में ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। वन इज कंसीडर एज द प्लाज्मा विच इज अराउंड 55% ऑफ द एक ब्लड कंपोनेंट को लोगे तो उसमें 55% आपको प्लाज्मा मिलेगा, 45% आपको उसमें मिलेगा ब्लड, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। अब जो आपका आरबीसी होता है, दैट आरबीसी इट कंटेन्स वन आयरन रिच प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन। सो फार मैंने आपको क्या बताया है? आई हैड टोल्ड यू दैट इफ यू विल टेक द ब्लड का कंपोनेंट, सो अगर आप उसको, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट मिल जाता है जिससे कि आई कैन टेक द ब्लड, एंड उस ब्लड को ये इस तरीके की जो है कंटेनर में हम भरकर यहाँ रख कर चले जाएं, ओवरनाइट अगर उसको रखे रहेंगे तो उससे क्या होगा? उससे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? दैट आपका इट शुड बी मोर रेड, हाँ जी, दैट आपका जो नीचे वाला पार्ट है आपको बहुत डार्क कुछ देखने को मिलेगा, देन हल्का सा वाइट देखने को मिलेगा, एंड मेजर पोर्शन में आपको येलो पार्ट देखने को मिलेगा। ये किससे हुआ है? ये हुआ है ओवरनाइट, जब ब्लड को स्टे करने के लिए दिया गया। So this yellow part is basically the plasma, this white part is the WBC plus the platelets, and this one is the RBC. ठीक है, so in the same way blood it contains the 2 part, the plasma and the blood cell, and this composition it is showing the blood cell, ये blood cell को show कर रही है। अब ये जो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट है ये आपका होता है 55%, and this part it is basically the 45%.
हम इसको क्यों देख रहे हैं, देखिए हर एक पर्सन में, देखिए सम पर्सन यूज टू से दैट कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, या अगर वो बहुत ज़्यादा चलते हैं या थोड़ा तेज़ चलते हैं सो वो हाफ ना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, वाई, बिकॉज उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो क्वांटिटी है वो कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस हीमोग्लोबिन क्वांटिटी कम होने की वजह से उनकी बॉडी के जो सेल है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो क्योंकि जब पहुंच नहीं पाते हैं देन जो उनके लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडन होते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एयर को वो अंदर लेके जा सके। क्यों? क्योंकि वो सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना चाहते हैं। फाइन, समझ आया आपको? इट मीन्स दैट कि यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है दैट कि आरबीसी में नीड टू हैव द आयरन रिच प्रोटीन हीमोग्लोबिन। सो दैट हीमोग्लोबिन ये अब करता क्या है, यहाँ से हमने ले लिया। अब सपोज करो मैं शेप बना रही हूँ, जो आपका आरबीसी होता है ना, आरबीसी की शेप ये होती है, ठीक है, इस तरीके से रेड कलर का होता है और थोड़ा राउंड में होता है। तो सपोज करो दिस इज दी आरबीसी, दिस आरबीसी इट इज कंटेनिंग, सपोज करो ये जो आपको ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं, इट इज कंटेनिंग, इट इज कंटेनिंग द हीमोग्लोबिन। एंड ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करते हैं, सपोज करो ऑक्सीजन आई एम मेकिंग विद दिस ब्लू वाला पार्ट, सो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है अपने पास रखते हैं। सो इन द लंग्स में जो आरबीसी है वो जाते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन वहाँ लंग्स की जितनी भी एयर आपने इनहेल करी है, आप 100% ऑक्सीजन ही इनहेल नहीं करते हो। इन दैट ऑक्सीजन जो आपने एयर इनहेल करी है, इन दैट एयर देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, अदर जो हार्मफुल गैसेज है वो भी हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनहेल करते हो योर बॉडी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल इनहेलिंग कि मुझे कौन सी एयर को इनहेल करना है। अगर ऐसा होता तो किसी की भी कार्बन मोनोऑक्साइड या दम घुटने की वजह से या अदरवाइज हार्मफुल गैसेज इनहेलिंग की वजह से डेथ नहीं होती। क्या लेना है या क्या छोड़ना है वो पता होता है हीमोग्लोबिन को। सो हीमोग्लोबिन को पता है कि ये सारी एयर में से उसे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को ले लेना है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को ले लेता है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, ये जो पोर्शन है ना इसको उठा लिया है, ये क्या है, आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन है और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी किए हुए हैं, उसको उठा के हम आ जाते हैं यहाँ पर। सो यहाँ ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन में आरबीसी, इसमें हमारा ये हो गया हीमोग्लोबिन, एंड दिस हीमोग्लोबिन इट इज कंटेनिंग दी ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन लेकर पहुंच जाता है कहाँ, सेल के पास। क्यों? क्योंकि इसे ऑक्सीजन डिलीवरी का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला है और इसे डिलीवर करना है किसे, माइटोकॉन्ड्रियन को। सो माइटोकॉन्ड्रियन तक ये कैसे जाएगा, अब देखिए ये क्या है, ये है प्रोटेक्टिव लेयर, सेल वॉल हो या सेल मेम्ब्रेन हो। तो क्या होता है दैट कि ये जो वॉल होती है ये परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब कि जिसे अंदर जाना है ये जाने देती है और जिसे बाहर आना है ये आने देती है। सो इससे क्या होगा, इससे आरबीसी आएगा और आरबीसी आकर ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स को डिलीवर कर देगा। सो वो क्या करेगा, आएगा एंड ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स को डिलीवर कर देगा। जैसे ही उसने ऑक्सीजन के कंपोनेंट को डिलीवर किया तो माइटोकॉन्ड्रियन को ऑक्सीजन मिल गई है, देन माइटोकॉन्ड्रिया इट विल स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट, जो भी इसका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन वो क्या करेगा, दैट विल क्रिएट द एटीपीज, वो एटीपी क्रिएट करेगा। एंड दिस एटीपी इज बेसिकली, एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो ये क्या करेगा, it will take oxygen from the hemoglobin and it will manufacture the energy, and through this process it will create the ATP, adenosine triphosphate, with the help of this adenosine। तो ये बनाता जाएगा and 38 ATP
जब बन जाएंगे 38 ATP will join and with these 38 ATP it will manufacture 1 unit of energy which is basically called as glucose. So 38 ATP, the adenosine triphosphate, it will lead to the 1 unit of energy which is called as the glucose. So जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है एंड जिसके थ्रू आपके सेल को एनर्जी मिलती है, आपके सेल का जो मेन फोकल पॉइंट है द न्यूक्लियस, उसको एनर्जी मिलती है. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ व्हाट, द माइटोकॉन्ड्रिया. सो फार हमने 5 चीज़ों के बारे में जान लिया है. द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर, सेल वॉल, the nucleus that is the main focal point and the nucleomembrane, okay, and mitochondria. Fine, okay. So इसके बाद next हमारा जो part आ जाता है which is basically called as the Golgi bodies. हाँ, जिसको हटा दूँ मैं 38. अभी क्या करने वाले हैं, अभी जस्ट आप समझते जाइए. ये बाकी सब जो भी है ये मैं बाद में आपका लिखवाने वाली हूँ, तो एक एक करके हम लिखते चले जाएंगे बाद में, बट अभी हम इसको हटा देते हैं. ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है. इट डजेंट मैटर दैट कि आप क्या और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो आप किसी भी फॉर्मेट में उसको बना सकते हो, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा पोर्शन जो आ जाता है, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द गोल्जी बॉडीज. इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द गोल्जी बॉडीज. Okay, ATP it is made by the mitochondrion. हुआ क्या है, ऑक्सीजन वो लिया है किसने, माइटोकॉन्ड्रियन ने, एंड माइटोकॉन्ड्रियन ने उसकी हेल्प से बनाए हैं ATP एंड 38 ATP ज्वाइन होकर बनाते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज ग्लूकोज. एंड ग्लूकोज से क्या होगा, सेल को एनर्जी मिलेगी. हाँ जी, समझ आया. ओके, नेक्स्ट पार्ट हमने क्या देखा है, गोल्जी बॉडीज. हाँ जी, किसी को कुछ ना समझ में आए तो आप पूछते जाना. अब गोल्जी बॉडीज बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके प्रोटीन को पैक करके रखता है एंड ये बाकी के जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा प्रोटीन, ये उनको पैक करके रखता है और अपने पास संभाल के रखता है, और अगर किसी अदर सेल को उसकी ज़रूरत होती है तो ये उसे ट्रांसफ़र कर देता है. सो what this Golgi body is doing? First of all, Golgi body is helping in packaging the material, the extra material. अब मटेरियल क्या होता है, एक सेल के पास तो होता है या तो एनर्जी के फॉर्मेट में होगा या तो उस सेल के पास जो है प्रोटीन के फॉर्मेट में होगा, तो वो एनर्जी और प्रोटीन के फॉर्मेट में वो अपने पास संभाल कर रखता है. एंड जब किसी अदर सेल को उसकी ज़रूरत होती है तो वो उसे ट्रांसफ़र भी करता है. तो Golgi body is helping in the processing, in the packaging and then the transferring of the protein, the lipid and the energy part, ग्लूकोज वाले पार्ट को वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. अब आप इस तरीके से समझ लीजिए, देखिए आपकी जो बॉडी है वो मल्टीपल मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है. वाई? क्योंकि एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं क्या, सेल जॉइंट होते हैं तो बनता है टिश्यू, टिश्यू जॉइंट होते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स जॉइंट होते हैं तो बनती है बॉडी. इस तरीके की ये जो है पूरी की पूरी प्रोसेस रहती है. यहाँ पर आप इस पॉइंट के बारे में देखिए विच इज़ बेसिकली द सेल. तो सेल को हम ले रहे हैं. अब इट मीन्स दैट आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल होंगे जिनको कि जॉइंट करके आपका बॉडी जो है वो फॉर्म हुआ है. अब आप इसे इस तरीके से समझिए. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज मान लीजिए आप सभी इस टाइम पे जो है क्लास ले रहे हो, तो क्लास लेते हुए आप बैठे हुए हो, यू आर इन अ सिटिंग पोस्चर. तो इस टाइम पे आपकी लेग्स का कोई भी यूज़ नहीं है. इस टाइम पे आपके जो वोकल कॉर्ड है उसका कोई भी यूज़ नहीं है. इस टाइम पे जस्ट आपको कंसंट्रेशन पावर मीन्स योर आईज एंड योर हैंड. वाई? बिकॉज यू हैव टू राइट.
सपोज करो मैं बहुत फास्ट लिखवा रही हूँ एंड फास्ट लिखते लिखते आपके हाथ के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। याद करिए जब कॉलेज में एग्जाम्स होते थे तो बहुत ज़्यादा लिखना होता था, तो उस टाइम पे जो आपकी राइट आर्म है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा जो है उसमें स्ट्रेस हो जाता था, पेन होने लगता था। इन द सेम वे आप ऑनलाइन लेक्चर लेते हो, उसकी वजह से आपकी आईज स्ट्रेन होने लग जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी में ओनली आईज आर द पार्ट जिनका की यूज़ हो रहा है। तो आईज वाले जो सेल हैं, जो आसपास के जो सेल हैं, दीज आर द सेल विच आर वर्किंग। इन द सेम वे आपका हैंड लिख रहा है तो ओनली दिस सेल इज वर्किंग। सो इट मीन्स दैट इस आर्म का, लेग्स के जो सेल है वो तो वर्किंग है, वो वर्किंग तो है, मीन्स दे आर क्रिएटिंग द एनर्जी, बट उनका यूज़ नहीं हो रहा है, उनमें जो एनर्जी है उसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो क्या होता है दैट कि द सेल जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्रॉम द सेल जिनको अभी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जिनको कि अभी प्रोटीन, ग्लूकोज इनकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या होता है गोल्जी बॉडीज़ हेल्प करती हैं एक सेल को दूसरे सेल में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में। सो बिकॉज यू नो दैट कि आपका ये जो पोर्शन है दैट इज़ परमिएबल, तो यहाँ से जो इन्होंने स्टोर किया है जो एक्स्ट्रा मटेरियल को, वो ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे सेल में। सो दिस इज़ द वर्क गोल्जी बॉडी इज़ डूइंग। टेंशन मत करिए, हाँ जी मिराल जो टेंशन मत करिए, अभी जस्ट ना हल्का हल्का समझते चलिए, मैं इनको एक एक करके लिखवाऊंगी और तब दोबारा इनकी प्रोसेस एक बार और बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आउटलुक दे रही हूँ, डोंट फील लाइक कि अभी 100% समझ में आना चाहिए, जस्ट सी द पोर्शन, फिर एक एक करके इनको लिखते चलेंगे। अभी आपको लिखना भी नहीं है, जस्ट बनाते चलना है, ये बनना चाहिए मेरे साथ साथ आपका, ठीक है। ओके हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज द वैक्यूल। So it is called as the vacuole. So अब ये वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक तरीके का पैकेज होता है जो कि जो लिक्विड होता है सेल में उसको इंटैक्ट करके रखता है, उसको संभाल कर रखता है, ठीक है। अब आपके दो तरीके के सेल होते हैं, वन इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। अब जो आपके एनिमल सेल होते हैं इन्हें अपना खाना खुद से नहीं बनाना होता, इस वजह से इन्हें अपने वैक्यूल में बहुत ज़्यादा लिक्विड जो है वो जनरेट करके नहीं रखना होता। बट आपका जो प्लांट सेल होता है, इन द प्लांट सेल उन्हें अपने लिक्विड को इंटैक्ट करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जो है खुद से जनरेट करना है। इसी तरीके से एक सेल में जो लिक्विड को होल्ड ऑन करने वाला जो पॉइंट होता है, जिसमें कि आपके इम्पोर्टेंट केमिकल्स होते हैं, जिसमें कि वाटर होता है, तो दैट इज़ बेसिकली टेकन बाय द वैक्यूल। तो वैक्यूल एक तरीके का कंटेनर है विच कंटेन्स द वाटर एंड अदर इम्पोर्टेंट केमिकल्स लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देख लीजिए, वैक्यूल के बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन होता है विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना लेते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है
दिस इज समथिंग विच इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये अटैच होती हैं, एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज स्टोरिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स, एंड इसमें राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. नॉट ओनली दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज कंसीडर एज द कैल्शियम स्टोरेज पार्ट एज वेल. इसको जो है कैल्शियम स्टोरेज पार्ट भी बोला जाता है. ठीक है. अब अनदर थिंग जो है आप देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. तो जो प्रोटीन ये राइबोसोम की हेल्प से बनाएगा, उस प्रोटीन की को ही गोल्जी बॉडीज आपका जो है वो स्टोर करेगा एक्स्ट्रा के फॉर्मेट में, एंड देन वो आगे उसको ट्रांसफर करेगा जब भी किसी सेल को जो है ज़रूरत होगी. ठीक है. उसके बाद एक पार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है, लाइसोसोम. अब लाइसोसोम क्या होता है, इसे गार्बेज हाउस बोला जाता है. तो ये क्या करता है, इट कंटेन्स सम सॉर्ट ऑफ केमिकल, जो कि गार्बेज जितना भी होता है सेल में वो लाइसोसोम जो है अपने में कंटेन कर लेता है, एंड उसी की हेल्प से ये जो सेल है वो साफ सुथरा रहता है, सेल अपना काम कर पाता है. ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो उस तरीके से रहता है. ठीक है. सो ये आपका एक हो गया लाइसोसोम. अभी आप क्या करिए, आप इसको पूरा बना लीजिए, एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट, सो नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग. ठीक है. एटीपी समझा दीजिए. ओके. टिश्यूज़ देखिए, अभी ना बेसिकली टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ दे आर द पार्ट जो कि आपके सेल को ज्वाइंट करने के बाद बनेंगे. सो हमारी बॉडी में देयर आर सम नर्व्स टिश्यूज़ होते हैं, देन मसल्स टिश्यूज़ होते हैं, एंड कुछ हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो भी होते हैं, जिनकी हेल्प से हमारे जो है वो ऑर्गन फॉर्म होते हैं. ओके. चलिए, सो अभी आप लिख दीजिए. फर्स्ट वन आप लिखेंगे सेल. हेडिंग बना दीजिए. आई थिंक आपने ये पूरा का पूरा ड्रॉ तो कर ही लिया होगा. अब आप हेडिंग बना दीजिए, लिखिए सेल, एंड देन राइट cell is considered as the basic structural and functional unit of life. It is called as the basic building block. It is called as the basic building block of the body. लिखिए. In 1665 Robert Hooke first noticed the smallest functioning unit with the help of microscopic and named it as a cell.
हाँ जी, हो गया। उसके बाद आप लिखिए ये, ठीक है, ये बना दीजिए। हाँ जी, हो गया है। जल्दी से ग्रीन सिग्नल दीजिए करने के बाद। हाँ जी, let me tell you one more thing. If I am asking for the green signal, then you have to give me the green signal. Varun and Malika and Abhishek. हाँ जी, सौरभ की तरफ से, खुशप्रीत की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आया। चलिए नेक्स्ट लिख दीजिए, हेडिंग बनाइए, लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। हाँ जी आकांक्षा, रूल इज दैट एट वन टाइम ओनली वन सिग्नल, आई मीन वन टाइप ऑफ। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना दीजिए आप, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, एंड उसमें फर्स्ट वन लिखिए दिस वन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। हो गया? हाँ जी, लिखिए it is an envelope like structure. It is an envelope like structure which acts as a protective layer, which acts as a protective layer, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। लिखिए both the animal cell and the plant cell, both the animal cell and the plant cell have this protective layer। तो दोनों ही सेल में, चाहे वो एनिमल सेल हो या वो प्लांट सेल हो, दोनों ही सेल में ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों का डिफरेंस भी हम आगे देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अब आप लिखिए सेकंड वन, दिस सेल वॉल। सेल वॉल। लिखिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर इन प्लांट सेल। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में से कौन सा सेल भारी होगा, हैवी होगा, और कौन सा सेल ज़्यादा फंक्शनल होगा? ठीक है, हाँ जी, जल्दी से मेरे को क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में से कौन सा सेल हैवी होगा और ज़्यादा फंक्शनल होगा? हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए। प्लांट सेल, ओके। एनिमल सेल, हाँ जी, नो।
जिन्होंने भी एनिमल सेल बोला है, द आंसर इज रॉन्ग, प्लांट सेल इज द राइट आंसर। देखिए प्लांट सेल ज़्यादा वर्किंग होता है, क्यों? क्योंकि उस सेल को अपना खाना खुद से बनाना होता है। So with the help of that the water, with the help of the sunlight, with the help of the chloroplast, those cell they are working more, उनको अपना खाना खुद से बनाना होता है, इस वजह से वो ज़्यादा वर्किंग सेल होते हैं। एंड इसी के साथ साथ बिकॉज उनको खाना अपना खुद से बनाना है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सपोज करिए आप कहीं आउटिंग के लिए गए हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं, अगर आप वहाँ बाहर से ही खाना खाओगे तो आप बहुत हल्का बैग लेके जाओगे, बट सपोज करो आप अपना खाना खुद से बनाओगे तो आपका सामान भी हैवी हो जाएगा कि नहीं? खुद से बताइए, बैग में आपका सामान हैवी हो जाएगा कि नहीं? आपको बनाने का सामान भी तो लेकर जाना पड़ेगा। इन द सेम वे प्लांट सेल को अपना खाना खुद से बनाना होता है, इस वजह से वो सेल हैवी सेल होता है, बिकॉज उसका वैक्यूल बड़ा होता है, क्योंकि उसको पानी स्टोर करना है, उसके अदर जो साइज होता है वो भी बड़ा होता है, एंड इट कंटेन्स मोर कंपोनेंट्स एंड मोर लिक्विड एज वेल। सो इस वजह से प्लांट सेल आपका हैवी सेल होता है, एंड टू प्रोटेक्ट दैट हैवी सेल आपकी एक सेल वॉल होती है विच इज कंसिडर्ड एज द एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, सो दैट इज द एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर इन केस ऑफ द प्लांट सेल। आगे लिखिए, both the cell wall and cell membrane, both the cell wall and cell membrane allow gases and liquid to pass through। सो ये हेल्प करती हैं दोनों को ही, गैसेस को भी लिक्विड को भी, सो दैट दे कैन पास थ्रू, एंड उसको हम परमिएबल बोलते हैं, दैट कि जिसको आना है वो आ सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है। देखिए आता तो क्या है, ऑक्सीजन आती है, जाता क्या है, गोल्जी बॉडी से एनर्जी इधर उधर जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। सो इट अलाउ गैसेस एंड लिक्विड टू पास थ्रू, ठीक है। आपका सेल वॉल भी हो गया। अब आप लिखिए थर्ड वन आप लिखिए माइटोकॉन्ड्रियन। लिखिए it is considered as powerhouse of any cell, लिख दिया है। अब उसमें लिखिए हेमोग्लोबिन ट्रांसफर्स ऑक्सीजन टू माइटोकॉन्ड्रियन। Mitochondrion converts that oxygen into ATP which is एडिनोसाइन। याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैं बता देती हूँ। हाँ जी, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बता देती हूँ। आज की जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, इस यूनिट से जब से सिलेबस बना है तब से लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर हम ये यूनिट पढ़ क्यों रहे हैं? क्या हमें ऐसे ही टाइम वेस्ट करने का दिमाग में आया? नहीं, ये यूनिट आगे के लिए बेस बनती है। लाइक in the future quite possible I am going to use the prokaryotic cell word या eukaryotic cell word या quite possible I can use the ATP। सो इस वजह से ये यूनिट आपको ऐसे कुछ करनी नहीं है, बट हाँ प्रीलिम में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट हाँ एंथ्रो के पर्सपेक्टिव से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप बोलोगे 15 साल से नहीं आया, अब आ जाएगा। लेट मी जस्ट टेल यू, ये यूनिट ऐसी नहीं है दैट कि आपको बेसिक 10th क्लास का पूछा जाए कि सेल के कंपोनेंट आप लिख के बता दीजिए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इससे हम ईजी बोलते हैं। तो ऐसे सेल के कंपोनेंट जो 10th क्लास का लेवल का है वो कोई नहीं आपसे पूछने वाला है, तो इस वजह से टेंशन तो बिल्कुल ही मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइफॉस्फेट।
सो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट करता है उस ऑक्सीजन को इनटू द एटीपी एंड देन एटीपी कंबाइन होते हैं एंड कंबाइन होने के बाद 30 एटीपी जॉइंट होते हैं एंड इनके जॉइंट होने से बनती है क्या, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी विच इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, which is called as glucose. And I hope अब आप सबको समझ में आ गया होगा क्या और किस तरीके का पूरा फंक्शन है. So I am repeating again, mitochondrion hemoglobin, it transfer the oxygen to the mitochondria, mitochondria convert that oxygen into the ATP, then 30 ATP they combines and after their combination there is a manufacturing of the 1 unit of energy and this unit of energy is called as the glucose, which is considered as the powerhouse of the cell. So that's why mitochondrion को powerhouse बोला जाता है because it is manufacturing the power. हाँ जी, इसको आप लिख लीजिए. हाँ जी, हो गया है. चलें आगे. नेक्स्ट आप लिखिए गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज, हाँ जी लिखिए. इट हेल्प्स in the process, it helps in the process and packaging of proteins and lipid molecule. So lipid, it is a type of protein. Lipid molecule, we will talk about this later. इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. So lipid molecules and it helps in transferring the energy. It helps in transferring the energy from less required area to more required area of the body. हाँ जी, हो गया. नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए वैक्यूल. नेक्स्ट लिख दीजिए वैक्यूल. लिखिए इट इज fluid filled single organelle
of the cell it helps in osmoregulation. अब ये osmoregulation क्या होता है? It is something which is related to the water बैलेंस इन द बॉडी. हमारी बॉडी का एक osmoregulation होता है, एक वाटर बैलेंस होता है, मीन्स जिसको कि हम फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि कुछ पर्सन को जब डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं एंड वो लाइक अनकॉन्शियस हो जाते हैं. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग विच इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कि ओस्मो रेगुलेशन उनका बिगड़ जाता है. इन द सेम वे सेल का भी अपना एक ओस्मो रेगुलेशन होता है. अगर वो मेंटेन रहेगा तभी सेल जो है आपका लिविंग रहेगा. ठीक है. सो इट हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन. ब्रैकेट में लिख दीजिए वाटर बैलेंस. एंड देन लिखिए इन द प्लांट सेल, in the plant cell it is larger in size. in the plant cell it is, सीधी सी बात है, प्लांट सेल में उनको अपना कैरी करना पड़ता है, इस वजह से ये वैक्यूल जो लिक्विड है जिस ओस्मो रेगुलेशन वाटर बैलेंस ये थोड़ा हैवी रहेगा. सो इट इज लार्जर इन द प्लांट सेल बट स्मॉलर in size in animal cell. But smaller in size in animal cell. हाँ जी, हो गया. नेक्स्ट आप लिख दीजिए लाइसोसोम. नेक्स्ट आप लिख दीजिए लाइसोसोम. हाँ जी, लिख दीजिए. it is called as the garbage house or the suicidal bag of a cell. Which digest the dead material of the cell. जो क्या करता है, जो भी आपका डेड मटेरियल है इन द सेल उसको खा पी के ख़त्म कर देता है. कैसे करता है आगे देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी वन शॉर्ट वीडियो एज वेल जो कि ज़्यादा हेल्प करेगी आपको चीज़ों को समझने में. ठीक है. सो ये आपका हो गया है. नेक्स्ट आप लिख दीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हाँ जी, लिखिए. इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म. हाँ जी, साइटोप्लाज्म क्या था? सेल के अंदर का जो भरा हुआ लिक्विड है, जो ब्लैक कलर में आपको सेल के अंदर दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड है साइटोप्लाज्म, जो कि हेल्प कर रहा है बाकी की चीज़ें इधर तैरती रहे, कोई एक दूसरे से ऐसे लाइक किसी का एक्सीडेंट ना हो एक दूसरे से, और ये अपना काम शांति से करते रहे. ठीक है, आराम से शांति से तैरते रहे वो. ठीक है. सो अब आप इसमें हाँ जी लिख दीजिए. इट इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. इट इज़ अटैच्ड विथ देखा आपने, attached with the nucleus on one side, and with plasma membrane on the other side,
इट कंटेन्स राइबोसोम। देखिए जो मैंने ये यहाँ पर सर्कल बनाए हुए हैं ना, दिस इज द जॉइंटिंग पार्ट जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस क्या है उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको ये प्रॉपर तरीके से देख लेना था। सो नेक्स्ट लिखिए, इट कंटेन्स राइबोसोम which leads to protein synthesis, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे सेल से रिलेटेड वो हमने जो है सभी देख लिए हैं। अब मुझे बताइए कोई, देखो देयर आर अदर कंपोनेंट एज वेल, सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिला के हमने देख लिया है। एंड तो वो ऐसे पार्ट है जो कि हमें इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान देने या करने की ज़रूरत नहीं है। साइटोप्लाज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द सेल। अब ये सबको समझ में आ गया है या नहीं मुझे बता दीजिए। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप जल्दी से टाइप करके मुझे बता दीजिए। सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट, देन हम आगे बढ़ेंगे। Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. ओके, सो अभी हमने देखा दैट कि यहाँ सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस दिखाया गया है, एंड न्यूक्लियस को अभी हम और ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं। बट एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, न्यूक्लियस इज समथिंग विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द डीएनए, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, अभी आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप अपने डाउट जो है वो टाइप करना, ठीक है। There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material. So अभी ये पार्ट हमने अभी करना है, दैट अभी हमने एक बेसिक फॉर्म समझा था कि सेल और सेल के ऑर्गन क्या होते हैं। सेल के टू बेसिक पार्ट होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, वो होते हैं। देन यूकैरियोटिक के टू पार्ट होते हैं, एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल, वो भी हमने आगे करना है। बट जस्ट आप एक बारी आउटलुक जो है वो देख लीजिए, वो समझ लीजिए। But it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one cell or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles?
Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. Don't stress yourself with this term, the DNA, the chromatin. We are going to do this in very detail, so just see this video once. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. आई होप आपको समझ में आई होगी अभी चीज़ें. नाउ आस्क योर डाउट्स.
हाँ जी जूही, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू जूही अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करती है, किस तरीके से होती है। हाँ जी मनाली, योर डाउट इज क्लियर नाउ। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो अभी हमने एक सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है वो समझ लिया है। अब हम वापस से जाते हैं, एक बारी सेल के बेसिक टाइप समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, एनिमल सेल का क्या सीन है, प्लांट सेल का क्या सीन है। एंड ये भी आपका जस्ट नॉलेज के लिए है, डोंट एक्सपेक्ट दैट कि समवन इज गोइंग टू आस्क यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल या यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। सीधी सी बात है, 10 तक का लेवल का बोला जाता है, यूपीएससी में आता है, बट आता कुछ भी नहीं है। ओके चलिए, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल एंड देन द सेल के 2 पार्ट, वन इज द प्रोकैरियोटिक, another one is the eukaryotic। ठीक है, अब याद रखने का एक इजी सा वे हो गया है, वो क्या, जब आप किसी ह्यूमन बीइंग को सिग्निफाई करते तो आप क्या बोलते हो, यू। तो इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग वाला यू मीन्स जो ह्यूमन बीइंग जो एनिमल वाला होगा, क्योंकि हम एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं ह्यूमन जो है। तो इट मीन्स दैट कि जो एनिमल सेल वाला होगा, ह्यूमन सेल वाला होगा, दैट इज गोइंग टू बी द यूकैरियोटिक। एंड जो बैक्टीरियन वायरस के लिए होगा दैट इज गोइंग टू बी द प्रोकैरियोटिक। आई होप याद रह जाएगा। ठीक है, सो आप एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिख दीजिए। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये सेल किस किस में पाया जाता है, ये सेल आपका पाया जाता है इन केस ऑफ द वायरस, इन केस ऑफ द बैक्टीरिया। जो आपका यूकैरियोटिक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इन केस ऑफ द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स। ह्यूमंस में देखने को मिलता है एंड एनिमल्स में देखने को मिलता है। अब सीधी सी बात है, यू कांट सी द वायरस एंड द बैक्टीरिया, तो उनके सेल का साइज कैसा होगा, कंपैरेटिवली यू नो दैट इनका जो सेल का साइज है दैट इज गोइंग टू बी द स्मॉलर एंड इट इज रिलेटिवली एंड इट इज बिगर इन साइज। अब सवाल उठता है दैट कि इनका डीएनए मटेरियल क्या है। अभी जस्ट लिख लीजिए, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी डिटेल दैट कि आपके जो सेल है, सेल में देयर आर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम दे कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल विच इज कॉल्ड एज द डीएनए। ठीक है, सो उसमें हमारा डीएनए होता है। तो जस्ट आप इसमें यहाँ लिख दीजिए ह्यूमन बीइंग, यहाँ हम ह्यूमन बीइंग के कंपेरिजन में कर रहे हैं। सो ह्यूमन बीइंग contains genetic material in chromosomes and इनके पास इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में नहीं होता है, इन क्रोमोसोम। और कहाँ होता है ये, इन न्यूक्लियस, वो उसमें नहीं होता है। बट ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस जेनेटिक मटेरियल इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। अभी जस्ट लिख के छोड़ दीजिए, चीजें आपको साथ साथ करने के बाद समझ में आएगी। क्रोमोसोम क्या होता है जस्ट लिख के आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, यहाँ जो सेल डिवीजन होता है वो कैसे होता है, वो सेल डिवीजन होता है विद द प्रोसेस ऑफ fission एंड बडिंग। और यहाँ होता है माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू।
अभी क्या होता है दैट बॉडी में सेल जो है डिवाइड करते हैं, और जब सेल डिवाइड करते हैं तो उसी से ग्रोथ होती है। सो क्या होता है दैट आफ्टर ए सर्टन एज आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करना बंद कर देती है, बट जो सेल है, आई मीन सेल का जो ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ का मतलब क्या है दैट उसी की हेल्प से ऑर्गन डेवलप होंगे, चीज़ें डेवलप होती जाएंगी। तो जब आपके सोमेटिक सेल का मतलब होता है बॉडी सेल, जब आपके बॉडी सेल में डिवीजन होती है दैट इज कॉल्ड एज द मिटोसिस, और जब रिप्रोडक्टिव सेल में डिवीजन होती है देन इट इज कॉल्ड एज द मियोसिस। ठीक है, क्या है आगे की प्रोसेस में आपको सब समझ आ जाएगा, अभी जस्ट माइंड में थोड़ा चीज़ों को सेटल करते जाइए। डोंट फील लाइक कि एक साथ ही हो जाएगा, चीज़ें कनेक्टेड हैं, साथ साथ में धीरे धीरे करते करते वो होंगी। बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक आपने देखा होगा एमीबा होता है या अदर वायरसेस हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो है फिजन से डिवाइड होते हैं या बडिंग से वो जस्ट जो है एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है एंड देन वो सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज दी वायरस, तो वायरस का क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन वो सेपरेट हो जाएगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेल डिवीजन। This is basically called as the cell division. एक बार अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ओके, एनाटॉमी ऑफ द सेल तो हम देख ही चुके हैं, वो तो हमने बना ही लिया है। यहाँ पर वी आर गोइंग टू सी सेल डिवीजन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो सेल डिवीजन किस तरीके से होती है। दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस प्रोकैरियोटिक सेल इट इज कंटेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम उनका होता है। तो वो क्या करता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन बडिंग से जो है 2 सेल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक। अनदर थिंग इन द सेम वे बडिंग के थ्रू भी आप देख लीजिए किस तरीके से सेल जो है वो डिवाइड होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में धीरे धीरे मटेरियल जो है उनका सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड विद दिस सेपरेशन जो है सेल डिवाइड हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल ये प्रोसेस होती है माइटोसिस एंड मियोसिस, और ये प्रोसेस आगे फर्दर आपको समझ आएगी। मियोसिस प्रोसेस समझ में आएगी व्हेन वी आर गोइंग टू हैव दैट रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन। माइटोसिस समझ में आएगी जब हम डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजीज एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, वो तब होगा। आई होप इट्स क्लियर। अब एक हल्का सा डिफरेंस और कर लीजिए between the animal cell and the plant cell. Animal cell and plant cell. साइज बताइएगा, साइज किसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा। सीधी सी बात है, आपका जो प्लांट सेल है उसका साइज जो है वो बिगर होगा। अब हम यहाँ रिलेटिवली देख रहे हैं एंड इसका क्या होगा, स्मॉलर होगा। हाँ जी, जल्दी से मुझे बता दीजिए, सेल वॉल वो किस में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। हाँ जी, जल्दी से, सेल वॉल वेरी गुड। सो लिख दीजिए, प्लांट सेल के केस में सेल वॉल इज प्रेजेंट, यहां पर लिख दीजिए सेल वॉल इज एब्सेंट। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मीन्स दैट एनवलप काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट एक मटेरियल होता है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द प्लास्टिड, विच इंक्लूड्स द काइंड ऑफ थिंग जो कि हेल्प करती है अपना खाना खुद से बनाने में एंड दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो द प्लास्टिड इट इज प्रेजेंट, बट यहाँ पर वो एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वैक्यूल। वैक्यूल की जब हम बात करें, सो वैक्यूल लार्जर होता है इन केस ऑफ द प्लांट सेल, larger in size, and यहाँ पर it is smaller in size.
vacuole smaller in size. हाँ जी, हो गया. So this is the small difference. अब हम आ जाते हैं वापस से अपने सेल के पास, और हम अपने सेल से अब क्या लेने वाले हैं. हाँ जी, तो ये सेल में यू कैन सी दैट रेड पार्ट एंड दैट न्यूक्लियो मेम्ब्रेन. देखो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन इट इज रिक्वायर्ड सो दैट कि वो न्यूक्लियस को इंटैक्ट रख पाए. बाकी सब काम न्यूक्लियस के लिए ही हो रहा है, बट द काइंड ऑफ फिर भी प्रोटेक्शन देने के लिए, बिकॉज न्यूक्लियस इज समथिंग विच इज कंसिडर एज द सोल. इफ द न्यूक्लियस इज लिविंग देन द सेल इज वर्किंग, इफ नॉट देन कुछ भी काम नहीं होगा. तो न्यूक्लियस को किंग कंसीडर किया जाता है. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम न्यूक्लियस को उठाएंगे और न्यूक्लियस को हम माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से देखेंगे. ठीक है. सो हम जस्ट क्या करने वाले हैं, सपोज करो ये जो सेल है, यहाँ पर मैं यही स्ट्रक्चर बना रही हूँ एक बार, सो दैट कि आपको समझ आ जाए. और दिस इज द न्यूक्लियस. सो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से इसको जूम करके देखूंगी. और जब मैंने अभी हमने देखा था ना इसको जूम करके, जब हमने इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखा था, तो जब हमने इसको जूम करके देखा देन मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला. ऐसे कुछ पेयर थे जो कि इसके अंदर थे. देन मैंने एक पेयर को देखा और उस पेयर को भी मैंने और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से जूम किया. देन मुझे इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला. तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिला. मैंने देखा ये कि जो स्ट्रक्चर था इट इज अटैच्ड विद बोथ ऑफ द साइड्स. तो ये किसी पार्ट के थ्रू जो है एक दूसरे से ये अटैच थे. जब मैंने इसको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जूम करके और जब मैंने इसकी स्टडी करी देन मैंने पाया दैट कि ये जो मुझे पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इज, ये जो पेयरिंग है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्रोमोसोम. और जो यहाँ से ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर निकला है, दिस इज कॉल्ड एज द DNA. एंड इस DNA में मैं अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, सपोज करो इफ आई एम गोइंग टू स्टडी ओनली दिस, then my subject of study is basically called as the gene. So this is something which is telling me about the whole structure of the DNA. Okay, so this is basically called as the DNA. हाँ जी, ये बना लीजिए जल्दी से, और बना के जल्दी से मुझे ग्रीन सिग्नल दीजिए, then we are going to process further. ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ना मैं जस्ट यहाँ से क्रोमोसोम एक उठाने वाली हूँ. पहले आप ये समझ लीजिए, ह्यूमन बॉडी में जो हमारा हर एक सेल होता है, हर एक सेल का न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटिंग अस दी बेसिक DNA मटेरियल. और हर सेल से एक ह्यूमन बीइंग के सेम DNA मटेरियल ही मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट इस सेल से ले लिया तो DNA मटेरियल चेंज हो जाएगा, उस सेल से ले लिया तो चेंज हो जाएगा, नहीं. कॉपीज होती हैं. जस्ट आपकी बॉडी में जितने सेल हैं उन हर एक सेल में कॉपीज होंगी, बट आपका एक ही जेनेटिक मटेरियल है. और वो जेनेटिक मटेरियल आपका, जो आपके न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनकी चेन के थ्रू जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. ये उसी के थ्रू हमारी जो है वो स्टडी रहती है. ठीक है, सो वो भी हम देखने वाले हैं. पहले हम अभी जस्ट मैंने आपको बोला था दैट हमने एक टर्म अभी देखी थी, क्रोमेटिन. तो वो क्रोमेटिन बेसिकली होता क्या है, तो उसको हम देखने वाले हैं. अब यहाँ ये समझ लीजिए, एक ह्यूमन बीइंग में जो उसका DNA मटेरियल होता है वो एक कंडेंस्ड फॉर्मेट में बंद होता है,
और वो जो कंडेंस्ड फॉर्मेट होती है, दैट कंडेंस्ड फॉर्मेट इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। और ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 46 इन नंबर होते हैं, बट हमेशा अगर आपसे पूछा जाए तो यू वुड से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज सम टेलिंग अस द काइंड ऑफ डिटेल्स। अब इन टर्म्स ऑफ आपको किससे एलर्जी होगी, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपके फेशियल फीचर्स कैसे होंगे, आपका ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से काम करेगा, किस पैटर्न पर वो डिपेंडेंट होगा, आप किसी पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक थिंग्स को लेकर वल्नरेबल तो नहीं होंगे। दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन योर DNA एंड दिस DNA इज बेसिकली कॉल्ड एज द जेनेटिक मटेरियल। और ये हमें मिलता कहाँ से है, ये हमें सेल के न्यूक्लियस पार्ट से मिलता है। अब आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल है, तो इट डजंट मीन दैट यू हैव बिलियंस ऑफ क्रोमोसोम। हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और चाहे आप अपने हेयर के सेल से अपना DNA निकालिए या अपने नेल से अपना DNA निकालिए या ब्लड से निकालिए, DNA मीन्स जेनेटिक मटेरियल सेम ही होगा और हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। फाइन, ओके। चलिए अब मैं यहीं से एक क्रोमोसोम को उठा रही हूं सो दैट आई कैन स्टडी इट वेल। ठीक है, ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे स्ट्रिंग, ऐसे मैंने इसको जो है खींच दिया। जब मैंने इसको खींचा तो इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो निकल कर आया। ऐसे ही अगर मैंने इसे भी खींचा तो इससे भी सेम स्ट्रक्चर जो है वो निकल कर आया। ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एज अब ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, पेयर नहीं है। ठीक है, पेयर क्या होगा, पेयर होगा इस तरीके से। ठीक है, ये होगा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ जी, समझ रहे हो? ओके, सो अब हम इस वाले पार्ट को अगर हम देखें, देन दिस पार्ट जो कि मैंने ऐसे ओपन किया हुआ है, जिसमें आपको ये डबल स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज द DNA। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं DNA। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको ये वाला बिल्कुल इस तरीके के टाइप का जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं लाइन लगा देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्रोमेटिन। देखो ये बिल्कुल हमने ओपन कर लिया। इसको अगर मैं ऐसे बंद करूं तो ये जो पोर्शन दिखाई देगा मुझे, दिस पोर्शन इट वुड बी कॉल्ड एज द कंडेंस्ड DNA। इसको मैं कंडेंस्ड DNA बोल सकती हूँ क्योंकि ये कंडेंस है, इसको बंद कर दिया है ना आपने। सो दिस वुड बी कॉल्ड एज कंडेंस्ड DNA। उसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इट इज द मोस्ट कंडेंस्ड पोर्शन, it is called as the chromatid। most condensed DNA, so it is basically called as the most condensed DNA। अब इसको अगर जब मैं पूरा बंद कर देती हूँ और ये बंद करके इस स्ट्रक्चर में आ जाता है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमोसोम। और हमेशा क्रोमोसोम होते हैं किस में, पेयर में। सो दिस पेयर इज बेसिकली कॉल्ड एज, और ह्यूमन बॉडी में कितने, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ट्वेंटी पेयर क्रोमोसोम।
हाँ जी, हो गया। सो इसको एक बार आप बना लीजिए एंड बना के जल्दी से ग्रीन सिग्नल दीजिए। कंडेंस डीएनए का मतलब होता है डीएनए को बंद कर देते हैं। अब यहाँ ऑफलाइन में देयर इज नो, अभी किस तरीके से स्प्रिंग इज नॉट अवेलेबल हेयर, बट आपने स्प्रिंग देखा होगा ना। सपोज करो आप स्प्रिंग को इस तरीके से बंद कर लेते हो, जब आप उसको बंद कर लेते हो वो कम स्पेस में फिट हो सकती है, जब आप उसको ओपन करते हो तो वो इस तरीके से ओपन हो जाती है, ठीक है ना। इन द सेम वे कंडेंस्ड का मतलब होता है उसको इस तरीके से बंद कर देना। सपोज करो ये मैंने ऐसे खींच के मैंने इसको पूरा का पूरा इस तरीके से ओपन कर लिया, और कितना ही ओपन किया जा सकता है। जब मैं सपोज करो इसको इस तरीके से बंद कर देती हूँ और बंद करके ये इस फॉर्मेट में ले आती हूँ, तो इसे बोला जाएगा कंडेंस्ड है। कंडेंस मीन्स कि बंद किया हुआ। ठीक है, हाँ ये बना लिया सबने। अब यहाँ ये समझिए मैंने एक बीच में लाइन ड्रॉ करी थी, इसका मतलब ये है मैं आपको इस पोर्शन के बारे में बता रही थी, और जो मैंने इस पोर्शन के बारे में बताया वो सेम मैं यहाँ इस पोर्शन के लिए भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आप ये सीखोगे दैट दिस इज कॉल्ड एज chromatid. Okay, and when I am combining these two chromatid, then it will lead to what? Chromosome. Means chromosomes, it includes two chromatid. समझ आया? कुछ नहीं मैंने किया है, जस्ट मैंने एक ये पार्ट देखा, इस पार्ट में से मैंने इस पार्ट को उठाया। दिस इज बेसिकली इस वाले पार्ट को, दिस इज क्रोमेटिड। क्रोमेटिड मीन्स कंडेंस्ड डीएनए, एंड जब मैंने टू क्रोमेटिड्स को ज्वाइन किया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्रोमोसोम, एंड दिस क्रोमोसोम इट इंक्लूड्स टू क्रोमेटिड। इसमें टू क्रोमेटिड जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। अब यहाँ ये समझ लीजिए एक क्रोमेटिड में होता है एक डीएनए। एज यू कैन सी दिस वन डीएनए। दूसरे क्रोमेटिड में होता है दूसरा डीएनए। इसका मतलब एक क्रोमेटिड में एक डीएनए है, दूसरे क्रोमेटिड में दूसरा डीएनए है, तो एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए हुए? एक क्रोमोसोम में हुए 2 डीएनए। समझ आया? अब ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? पेयरिंग होती है। तो एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए प्लस दूसरे क्रोमोसोम में 2 डीएनए, it is basically called as 4 DNA. It is basically called as 4 DNA. So one pair of chromosome it includes 4 DNA. हाँ जी, हो गया? लिखिए, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में आप लिख लीजिए, उससे काम हो जाएगा। बस जैसे ऐसे लिख लेना, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 4 डीएनए।
अब बेसिकली क्या होता है दैट कि आपका एक साइड का क्रोमेटिड और दूसरे साइड का क्रोमेटिड ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं, मीन्स दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉपी ऑफ ईच अदर। सो सपोज करो मैं इसको और इसको, इनको इस तरीके से बंद करूंगी तो ये क्या है, ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज द कॉपी ऑफ ईच अदर। सो आप लिख दीजिए वन क्रोमेटिड, ऐसे लिख दीजिए आप, कॉपी ऑफ ईच अदर। कॉपी ऑफ ईच अदर। हाँ जी, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आप लिखेंगे, यहाँ हमने ये पैटर्न देखा था, सो दिस पैटर्न इज बेसिकली कॉल्ड एज अ डीएनए। यहाँ आपने देखा दैट वन डीएनए दूसरे साइड में दूसरे डीएनए से अटैच्ड है। अटैच्ड है इट मीन्स दैट ये किसी बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, तो वो बॉन्ड समझने की हम कोशिश करेंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। सो बिकॉज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतना एक बार आप अपने माइंड में सेटल करेंगे, इस चीज़ को वापस से प्रोसेस करेंगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट एक बार कर लो ध्यान से, हमेशा के लिए ये याद रहता है। सो अब यहाँ आप ये देख लीजिए, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डीएनए, सो डीएनए में आपको यहाँ पर स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, दीज लाइक डीएनए इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड पार्ट, और डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो इट इज डीएनए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो शुगर होती है, दैट शुगर इज बेसिकली कॉल्ड एज द डीऑक्सीराइबो। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द डीऑक्सीराइबो। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कुछ नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं, ए टी जी सी यू। तो हमारे पास बेसिकली 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनाइन लिखने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, ए टी जी सी यू याद रखोगे तो काम चल जाएगा। थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन, ठीक है। सो दीज आर द नाइट्रोजन बेस। हो गया, ओके। सो ये क्या है, ये है नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ ये समझ लीजिए, डीएनए में देखो हमें पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग यहाँ 5 है, तो 5 की तो पेयरिंग नहीं हो सकती, देखिए 1 की 2 से हो सकती है, फिर 3 की 4 से हो सकती है, तो 5 तो ऐसे ही बच जाएगा ना। इसी वजह से पेयरिंग क्योंकि हो रही है, तो इस वजह से एक जो होता है हमारा, उससे पेयरिंग हमारी नहीं होती है। सो डीएनए में अब ऐसे याद रखना, आप डीएनए किसका, मेरा, तो डीएनए आपका अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, यू मीन्स योर नहीं होगा, तो इट मीन्स दैट कि इसमें डीएनए में यू नहीं होता है। देखिए ये जस्ट मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। सो डीएनए में ए का पेयरिंग होता है टी के साथ जो कि डबल बॉन्ड होता है, एंड जी का पेयरिंग होता है सी के साथ जो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ए इज हैविंग पेयरिंग विद द टी, जी इज हैविंग विद द सी। सो इस तरीके से ये पैटर्न रहता है। ए का टी के साथ पेयरिंग होता है डबल पेयरिंग, एंड जी का ट्रिपल बॉन्ड होता है विद द सी, एंड इसी फॉर्मेट से ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। सो इसी तरीके से ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, तभी ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसको अनवाइंड करना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ ये समझ लीजिए
ये जो नाइट्रोजन बेस आपने यहाँ पर लिखे थे, शुगर के साथ ये नाइट्रोजन बेस दीज NB ये जॉइंट होते हैं एंड ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड देन न्यूक्लियोसाइड जॉइंट होती है फॉस्फेट के साथ एंड ये बनाती है न्यूक्लियोटाइड एंड देन ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये बनाती है क्या, न्यूक्लिक एसिड which is called as DNA. If the sugar is the deoxyribo तो ये बनाएगा DNA. If the sugar is only the ribo then ये बनाता है RNA. हाँ जी, लिख लीजिए इसे. याद कैसे रखें, किसने क्या बनाया है, न्यूक्लियोसाइड और टाइड ही बनाया. साइड वहाँ होगा जहाँ एस से शुगर होगा, एस से शुगर, एस से साइड, एंड देन दूसरा तो आपका बच ही जाएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड. अब नेक्स्ट हमारा होता है क्या, डीएनए में हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. अनदर पार्ट होता है आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. क्या प्रोसेस है आगे हम देखेंगे. आरएनए जो है बेसिकली क्या है, डीएनए जैसे हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है ऐसे आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, द आरएनए. सो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इसका मतलब ये नहीं है, आरएनए इवन हमारे डीएनए मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है. तो आपने देखा दैट ए ने टी के साथ बॉन्ड बनाया है, जी ने सी के साथ बॉन्ड बनाया है, यू बेचारा अकेला रह गया. तो डीएनए में तो यू नहीं है बट आरएनए में यू होता है. तो आरएनए में कौन होता है, आर के पास सबसे पास कौन लगता है, टी. तो पास वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस वजह से ए यू के साथ बॉन्ड बनाता है और जी सी के साथ बॉन्ड बनाता है इन केस ऑफ आरएनए. बाकी का पूरा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहता है और ये इस तरीके से आरएनए के केस में बनता है. अब एक बार आप डिफरेंस जो है वो लिख लीजिए बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. डीएनए बेसिकली ये क्या करता है, फर्स्ट हेल्प्स इन हेल्प्स तो छोड़ दीजिए, इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन. और आरएनए जो है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट, डीएनए में शुगर का नेम क्या होता है, डिऑक्सीराइबोज, एंड यहां पर राइबोज. इसमें नाइट्रोजन बेस ATGC इज प्रेजेंट. यहां पर AUGC is present. ये कैसा होता है, इट इज हैविंग द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर.
यहाँ पर म्यूटेशन क्या होती है, दैट अननेसेसरी चेंजेस हो जाना, वो पॉसिबल होते हैं, यहाँ अननेसेसरी चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। क्या है उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। म्यूटेशन हमारे सब्जेक्ट का एक पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। तो लिखिए मोर चांसेस ऑफ म्यूटेशन, यहाँ पर लेस चांसेस ऑफ म्यूटेशन। ये 15 ईयर से भी लाइक फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स से इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि इससे थोड़ा ऊपर उठ चुकी है यूपीएससी, तो वो ऐसी बेसिक चीज़ों के ऊपर नहीं पूछती है। सो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट 9। लेट मी जस्ट शो यू वंस। So we are going to start with the unit 9 human genetics method and application, इससे हम start करेंगे and then we will go forward 9.234। इस तरीके से हम जो है वो हमारा पूरा complete होगा। ओके, आपको कुछ समझ ना आया हो तो कल की क्लास में भी आप पूछ सकते हो, अभी आप पूछना चाहते हो तो अभी आप पूछ सकते हो, एक रिवीजन लेने के बाद पूछना चाहते हो तो कल भी आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू भी यू कैन आस्क।